Hare Krishna. So, what we'll do, just like mostly lot of devotee, I think what I see here, already uploaded this are here now. Few of you maybe study Bhagavad Gita, meditator. So, we'll discuss first the context, uh, how the Bhagavad Gita actually started, Bhagavad Gita. Then we will see some parallel study detail. So, if you see the Bhagavad Gita, it is first Bhagavad Gita, it is Bhagavad Gita. Generally, Bhagavad Gita in constant voice getting disturbed. Samdal Prabhu, voice getting disturbed. Clear, Yes. Prabhuji? Yes, Prabhuji. Voice is clear. Okay. So in Bhagavad Gita, actually, we say this is a Mahabharata, Bhishma Parva, actually, sixth Parva, Parva, Mahabharata, chapter 25 to 40. There is a Bhagavad Gita. This is Shruti in Smruti. Bhagavad Gita is a Shruti Shastra. That is Mahabharata is Smruti. Shruti and Smruti means that Smruti means after speaking, somebody has to write. Shruti means to hear. ये आप सुने और इसको स्पीक किए. So इसलिए although Mahabharata actually the Shruti, but inside that is Shruti Shastra, that is Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita, we see there is various verses around 18 chapter and 7 verses. You know? So Dhritarashtra speak one verse like that, and Sanjay 41 double towards Arjuna, and remaining 5 and 75 that is Krishna's quote. So in Bhagavad Gita, you see that is Arjuna, just like one pastime when Arjuna was in Virat Rajya. So Virat Putra, okay, when all the Kauravas wanted to fight, so उसमें Dhruvan Nala, Arjuna was in Dhruvan Nala, So she was teaching to son, as a daughter of the Virat. तो उसका बेटा फाइटिंग करने आ रहा था, बाद में डर गया. So he asks, oh, he identify, introduce. Okay, you are Arjun. Okay, tell me your 20 names. Yeah, I confirm. Okay, I'll say you are Arjun. So Arjun actually lot of nickname. So that's like Dhananjaya, and Parth, Urakesh. So many, like 20. And Krishna also various names also. 33 other names of Krishna. Bhagavad Gita shows that. And if you say there is a relationship, vertical relationship and the horizontal relationship. Horizontal relationship, if you want to go to Krishna, or you want to advance spiritual line, or if you want to progress in the practice, that is vertical relationship. We some other little bit, compromise, or you have to can say stayed in the horizontal relationship. In Shastra, we see it, just like Prahlad, Prahlad actually, so he has listened to Hiranyakasipu. But same time he has listened with the Lord. So he also reject father like that. And Vibhishan also, and also Ravana actually. So Vibhishan also reject to father. Like that, Balima reject to Shukracharya also, as a guru also. Jagni Patni also rejected the husband towards a Gopi. Means Gopi also rejected husband. Because उनके जो रिलेशनशिप है वर्टिकल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए मैच्योर करने के लिए दैट वर्टिकल रिलेशनशिप स्पिरिचुअल रिलेशनशिप तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप सो कॉल्ड बॉडी रिलेशनशिप और व्हाटएवर दैट समटाइम्स जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है ना इवन द भरत महाराज लॉर्ड चैतन्य also Lord Chaitanya in his young age 21 years 24 years he also rejected not rejected he left actually home mother or अपना wife को like that. So why I'm saying this, because the contest in Bhagavad Gita and contest in the Uddhav Gita, Parikshit Maharaj
is asking to Sukadeva Goswami. ओके क्यों ऐसा भगवान कृष्ण होते हुए भी क्यों ऐसा मूसल लीला किए, और उसके बाद उद्धव गीता शुरू होता है। अब भगवद गीता ऑल्सो सेम थिंग। अर्जुन जब वो जुगमार माध्यम से भगवान कृष्ण डाले, ओके आई विल नॉट फाइट, देन ऑल्सो भगवद गीता स्टार्ट कॉन्टेस्ट। इसलिए भगवद गीता कल जुगो शास्त्र। व्हाई? बिकॉज दैट शास्त्र, but yoga shobd connected so many times, around 7 to 8 times like that. So connectivity to Krishna, connect to Supreme, that's called the Yoga Shastra. And that person who is connect, that like the yogi. So like that, in Bhagavad Gita, you see in the, from beginning actually, Lakshagra, okay, the Panch Pandav and Kunti, Mother Kunti, they sent. बाद में क्या, they suffer, है ना। Finally, the beginning actually, Bhim, Duryodhan gives some poison laddu, sweet, and put in the Jamuna. So, and also, the atrocity of the Duryodhan and brothers, like, the Asasava, they cheated by help of Shankuni use करके सब हराए, है ना, खांडव वस्त्र ले लिए। So, finally also disrobe the cloth of the Draupadi. So many. Finally, Krishna, okay, jo to hua. Krishna came as a peace messenger. Okay, give only five land, 5 villages. Then Duryodhana will know. Okay. So finally, they were in 13 years exile, 12 years or 1 year Agyan. So Krishna finally came with a peace messenger. Okay, the last. Still, actually, Krishna, Duryodhana actually did not give anything. So Krishna also saw Virat Rupa, because Duryodhana wanted to bound. So in this contest, then actually Bhagavad Gita start actually, in the middle of the Kurukshetra war. But if you compare the Uddhav Gita, how Uddhav Gita started. So Uddhav Gita is a 11th canto chapter. So Parikta Maharaj is asking, Acha, why this Brahman cross courses to Jadu? Jadu actually worship Brahman because Krishna, if you read the Bhagavad Gita, Krishna book, there is pastime Mriga, not Mriga, lizard pastime. So he was a king. So because उसके पास जो था कुछ गाय दान किया था ब्राह्मण को, और दूसरा ब्राह्मण को दान किया, एक गाय मतलब क्या हो गया था, क्रॉस एक्सचेंज हो गए थे। तो फिर दे डिमांड किए थे सेम गाय, तो बाद में क्रॉस किए थे, वो लेजर्ड बन गया था। वहां पर एपिसोड में कृष्ण भगवान सभी यदुवंश को लेकर गए थे, और वहां पर लगभग सभी को शिक्षा दिए नॉट टू ऑफेंड ए ब्राह्मण। तो so many times Krishna also give lesson to not to offend Brahman. But finally, तो सांबा actually क्या किया, he made some mistake, है ना। तो जो कि वृष्णि और यदुवंश, they so respectful to the Brahman, इसीलिए उसकी परिवार में मतलब द्वारका में always a lot of time, many times सारा ऋषि including नारद मुनि को दक्ष gave अभिशाप, okay, you cannot stay in one place, because वो हरियश धवलस को ब्रह्मचारी बनाया था, यानी 10,000 plus 1,000, 11,000 son of the दक्ष को ब्रह्मचारी बना दिया, तो इसलिए नारद मुनि को दक्ष अभिशाप दिया। बट फिर भी दक्ष का अभिशाप नारद मुनि तो असर नहीं पड़ा था। He was pure devotee, he was staying continuously in द्वारका। तो वहां पर नारद मुनि, बाकी वशिष्ठ, सो मेनी ऋषि, वहां पर जो यदु कुमार है ना, they trying to cheat the sages। तो ये बात होता है सहज मेंटालिटी, एटीट्यूड ऑफ सहज मेंटालिटी, है ना। तो इसलिए कृष्ण wanted to give some lesson। तो इसलिए क्या करिए, भगवान की जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। जैसे कृष्ण अर्जुन को गीता दी है, उसके माध्यम से होल पॉपुलेशन, पूरा वर्ल्ड और आगे आने वाले लोगों को गीता मैसेज मिल रहा है, बिकॉज कृष्ण क्रिएटेड जोगमाया।
जोगमा माध्यम से अर्जुन को, अर्जुन इज डिवोटी। So like that, Krishna also ये एपिसोड बना रहे हैं. Although Vrishni, Yadu are so respectful to Brahman, Sadhu, sages, still Krishna want to teach दो lessons करना चाहते हैं. Vaishnava should never be considered a foolish, ignorant, mundane. और सबसे बड़ी पॉइंट है डेंजर ऑफ द फॉल्स प्राइड. तो उनकी जो वृष्णि वंश थे, रिड्यूस द फॉल्स प्राइड ऑफ द फैमिली मेंबर. तो भगवान ये लीला क्या किए, क्रिएट किए. तो क्या क्या, सांबा एक्चुअली जस्ट प्रिटेंड लाइक एक प्रेग्नेंट वुमेन, और उसके नीचे क्या आयरन क्लॉब रखा था. ओके सजेस्ट, ओके दिस लेडी इज प्रेग्नेंट, और क्या बनेगा बताओ. तो फिर गुस्सा हो गया सारा साधु, है ना. ओके जो भी है वो आपकी वंश का विनाश करेगा. तो देन फाउंड आउट दैट आयरन क्लॉब. तो ये हुमसिकल जो बिहेवियर जो हुआ, ओके, द क्लॉब एक्चुअली रिप्रेजेंट द डुप्लिसिटी. डुप्लिसिटी जो होता है स्मैशेस ऑल नॉन डिवोशनल एक्टिविटीज, है ना. हुमसिकल डॉक्ट्रिन जो होता है, शिरो डिवोटी होते हैं, ये सब का रिप्रेजेंट करता है. तो सांबा जो किया, जो की मेंटालिटी. तो कृष्ण कॉन्शियस में कभी कभी ह्यूमर होना चाहिए, बट वन मस्ट नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ ऑफेंसिवनेस. ह्यूमर कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ऑफेंसिव मेंटालिटी है, वो तक वहां पहुंच जाओ. तो इसलिए वन मस्ट ड्रॉ ए लाइन ऑफ इन ह्यूमर टॉक. कोई ह्यूमर करना चाहते हो, एक लाइन होना चाहिए, कहाँ तो मैं ह्यूमर करूं, कहाँ तो नहीं, और किसको करूं, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट. तो इसीलिए ये पास्ट टाइम से बहुत कुछ सीखना मिलता है actually. और खास करके भगवान डिजायर, लॉर्ड डिजायर द कॉस्ट टू फॉलो अपॉन द हिज फैमिली मेंबर. क्यों? उसके बहुत सारे पर्पज है ना, लॉट ऑफ उद्देश्य उसका. मेनली 3 पर्पज है भगवान का. क्या है? टू सेंड ऑल हिज डेमिगॉड, यू नो, पर्सन. क्योंकि जो भगवान के जितना सब वंश में थे, एक तो भगवान की धाम से आए थे जो नित्य लीला में रहते हैं, और कुछ पार्ट जो डेमिगॉड की पर्सन थे. तो भगवान क्या करना चाहते हैं, अभी भगवान का लीला समापन होना चाह रहा है. ओके, आई टेल वन स्टोरी ऑल्सो, ये भगवान क्यों किया एक्चुअली. बट यहाँ पर 3 पर्पस है इमोशनल लीला, है ना, जो कर रहे हैं. फर्स्ट थिंग, टू सेंड ऑल द डेमिगॉड बैक टू देयर पोजीशन. क्योंकि तो डेमिगॉड पोजीशन जो थे, जो उनके वंश में, उसको बैक करना चाहते हैं. और जो पर्सन थे, मतलब वैकुंठ से आए थे, शतद्वीप से आए थे, है ना, तो हिज पर्सन शुड बी रीएस्टैब्लिश वैकुंठ, उनको भी अलग कराएंगे, है ना, बद्रिकाश्रम से. एंड थर्ड पॉइंट दैट you decipher within his eternal asset from the eye of materialist people. तो भगवान की जो वंश में थे, जो मेटेरियलिस्ट पीपल थे, तो उनका जो इटर्नल एसोसिएट है, उनको भी अलग करेंगे. एक तो डेमिगॉड एसोसिएट, और जो आए थे वैकुंठ लोक से, शतद्वीप से, बद्रिका आश्रम से, उनके अलग अलग पोजिशन से वो भी जाएंगे. और जो भगवान अपने धाम से लेकर आए थे, खास करके वृंदावन धाम से इटर्नल एसोसिएट, तो वहां भी जाएंगे. तो इसीलिए there are lot of कारण होता है मोस्ट लीला का. there are lot of reason for annihilation of Yadu dynasty. Okay, जैसे first एक one point, some of the Yadu became inimical towards the Lord, so they were greatly powerful. तो ये कारण था, कुछ यदुवंश के लोग थे, वो भगवान एक्चुअली मतलब पावरफुल है, और भगवान को चैलेंज करने लगे भी, तरह चैलेंज मेंटालिटी आ गया. तो भगवान नहीं चाहते मैं जाने के बाद ये लोग ऐसे कुछ करें, तो इसलिए उनको वापस लेना चाहते. सेकंड कारण है, फुलिश पीपल विल गेट मिसलीड. क्यों? क्योंकि उनका होमसिकल बिहेवियर इतना बढ़ गया जाएगा कि बढ़ गया, कंसीडरिंग ओके हम भगवान की वंश से, हम भगवान का बेटा है, भगवान का पोता है, भगवान की ग्रैंडसन है, तो इसलिए भगवान चाहते हैं उसको मैं जाने से पहले खत्म करूं. और यदु सबसे बड़ी इतने प्रेम करते भगवान को, तीसरा कारण है, Yadu in separation from Krishna or Lord will trample and destroy the earth. ऐसा ना, भगवान के प्रेम की विरह में इतना पागल हो जाएंगे, पृथ्वी भी एक्चुअली वो खुदाई कर लेंगे, भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए. तो इसलिए भगवान चाहते थे, he facilitated disappearance of Yadu before himself. भगवान जाने से पहले उनकी वंश को डिसअपियरेंस करना चाहते. ये तीसरा कारण. फोर्थ कारण है, जो कंडीशन सोल है, to teach conscious soul about the temporary nature of material world.
भगवत गीता में ये चीज बता रहे हैं, विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन बता रहे हैं, सी दिस में काल रूप, in the Kal Rupa you can see the present, past and future, that I am going to predict what is going to happen. In that भगवान बताना चाहते हैं material world is temporary, okay, there is no permanent solution, okay, and be ready for detachment. तो यहाँ पर ही भगवान इस लीला में कह रहे हैं to teach conditioned soul about the temporary nature of material world, even though his family members are were at stake. तो इवन तो भगवान के वंश भी हो, कोई भी हो, है ना, भगवान यही बताना चाहते कंडीशन सोल को, ये मेटल जो वर्ल्ड होता है टेम्पररी नेचर, ये हमेशा परिवर्तन होता है। फिफ्थ कारण है खास करके संसार में कुछ मायावादी होते हैं, टू प्रोटेक्ट कॉमन पीपल फ्रॉम मायावादी, क्योंकि पीपल विल वर्शिप यदु कंसीडर इट टू देम इक्वल टू कृष्ण। जैसे भगवान कोई मायावादी होते हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, तो कुछ लोग हो गए जो भगवान को पूजा करना चाहेंगे, भगवान बन के पूजा होना चाहेंगे, तो इसीलिए जो कॉमन पीपल को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम मायावादी, ओके, देन कृष्ण चाहते हैं ये लीला की। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। दैट मींस इसमें दो पॉइंट है, इस पॉइंट में दो पॉइंट है, टू ब्रिंग ऑर्डिनरी पर्सन टू द लेवल ऑफ कृष्ण और टू ब्रिंग कृष्ण टू द ऑर्डिनरी लेवल। मान लो आप सोचिए ऑर्डिनरी बंदा को आप कृष्ण लेवल ले लो, नहीं तो टू ब्रिंग कृष्ण, आप नीचे कृष्ण उतार दो, कृष्ण साधारण जैसे बंदे थे मेरे जैसा है, दोनों लेवल से ये मायावादी कॉन्सेप्ट होता है। ये था फिफ्थ कारण। सिक्स्थ कारण है टू शो अबाउट द पावर ऑफ वैष्णव अपराध, दैट मींस इसी इनटॉलरेबल, भगवान ने दिखाना चाहते हैं पावर ऑफ वैष्णव अपराध, वैष्णव के अपराध करने से क्या नतीजा होता है, ये था क्या सिक्स्थ कारण। उसमें फिर भी गांधारी की कॉर्स करते हैं, गांधारी कॉर्स नॉट प्राइमरी कॉर्स बट कॉर्स ऑफ गांधारी इज आल्सो द कॉज ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन। तो भगवान कृष्ण गुस्सा में गांधारी बोल दिया, ठीक है मेरे सामने मेरा बेटा सो मर के चला गया, तुम्हारा वैसे नाश हो जाए, बट इसे सेकेंडरी कारण, इट्स नॉट प्राइमरी कारण। एंड सेवेंथ कारण है birth in the family of Acharya or Supreme Lord is not the qualification that one has to exhibit the quality. तो भगवान है ये दिखाना चाहते हैं, कोई माल जन्म ले लिया कोई आचार्य फैमिली में, कोई भगवान की फैमिली में, तो इज नॉट क्वालिफिकेशन नहीं है, क्योंकि हैज टू एग्जिबिट द क्वालिटी। तो भगवान चाहते हैं ये बात सिखाना चाहते हैं। द सेवेंथ कारण, एट रीजन, Krishna appear in the particular family to attract the conditioned soul towards him. That means he all belong to his family. कृष्ण जदु वंश में एक्चुअली जन्म लिए, जदु का ग्लोरी किए, है ना, तो पर्टिकुलरली भगवान एक्चुअली अपियर होते हैं और टू अट्रैक्ट ऑल कंडीशन सोल टुवर्ड्स हिम, क्यों, ऑल बिलोंग्स टू हिज फैमिली। तो भगवान है यदु का तो ग्लोरिफिकेशन हमेशा रहेगा, बट भगवान जाने के बाद ये लोग भी अपने ग्लोरीफाई करेंगे, इसीलिए भगवान क्या करते हैं उनको डिस्चार्ज। नाइन्थ कॉज, कृष्ण इज द well wisher and wielded the discriminatory power of his own descendant in such a that so common people get right discrimination. That means he do not accept the person just because he is in the family of Krishna. इसलिए ये एक्चुअली भगवान ने इस चीज को थोड़ी सी मतलब क्लैरिटी चाहते, कोई मिस लीडिंग होगा, इसीलिए उसको क्लैरिफाई करते। टेंथ कारण है टू डेमोन्स्ट्रेट द यूजलेसनेस ऑफ सहज संप्रदाय। सहज संप्रदाय को मतलब उनकी वैल्यू कुछ नहीं होता है, ताकि उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भगवान ये लीला भी किए। और 11th कॉज है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज मर्सी टू हिज डेवोटी। तो ऐसे बहुत सारा एक्चुअली पॉइंट होता है, मोस्टली ये जितना पॉइंट चर्चा किया उसमें तीन कारण था। तो जो डेमिगॉड पार्ट है भगवान को पहुंचना चाहते हैं, और जो इटर्नल पार्ट है भगवान पास जाना चाहते हैं, जो वैकुंठ से जो अयोध्या से जहां से आए थे भगवान वहां पे, ये जो मेन कॉज है। बाकी जो है कॉज ये सब सेकेंडरी कॉज। कैसा है इसका फिर स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी है। जब भगवान टुडे विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कॉन्टेस्ट, जब तक कॉन्टेस्ट नहीं समझेंगे तो उसकी डीपर जो मीनिंग आएगा में मिस द पॉइंट।
तो भगवान जब वहां आए थे, कुरुक्षेत्र में आए थे, ऑल यदुवंश है ना, वहां सूर्य पर या कुरुक्षेत्र में आए थे, तो वहां पर कली कली ऑल्सो केम। कली आगे पर्सनली मिला था, कली एक पर्सनैलिटी। वो पूछा भगवान, अभी ना द्वापर आप होने से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी जो जो चार जो धर्म का जो मतलब लेग है, दया ना, सो सत्यता, प्यूरिटी, ये जो चार जो लेग है, ये इतना मजबूत हो चुका है, सो स्ट्रॉन्ग, मोर देन सत्ययुग। तो मेरा कैसे एंट्री होगा, हाउ आई एंट्री इनटू दिस मतलब कलियुग, मैं समझ नहीं आ रहा है। तो लॉर्ड असुर टोल्ड, डोंट वरी, आई डू समथिंग, यू कैन एंट्री वेरी इजीली। तो भगवान ऐसे लीला किए रीडिंग द मौसम लीला, तो सारा लोग बिल्ड कर दिए, है ना। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये बताते हैं, ये जो ये लीला जो हुआ, कोर्स हुआ, तो उसके बाद सारा लोग आए उग्रसेन के पास। उग्रसेन टोल्ड, डोंट वरी, जो क्लॉव मिला है उसको आप क्या करो, पाउडर करो, पाउडर करो, और समुद्र में फेंक दिए। और छोटा सा पीस हुआ, वो उसको फेंक दिया। अब वो पीस जो छोटा सा पीस था, वो एक फिश, उसको सॉलो किया। बाद में जरा नाम के एक आरो में कर उसको खींच लिया। बाद में वो जो शार्प मतलब उसका जो टिप होता है आरो का ऊपर, उसको यूज किया। और जो पाउडर था, दे ग्रू एंड टॉल शार्प ग्रेन। तो फाइनली कृष्ण चाहते तो ये जो कॉस्ट को काउंटर कर सकते, बट कृष्ण नहीं चाहते। क्यों? कृष्ण का प्लान से हुआ, क्योंकि कृष्ण सैंक्शन दिस इवेंट। तो कृष्ण कैसे इसको काउंटर करेंगे? तो इसीलिए ये कॉन्टेस्ट इससे उद्धव गीता शुरू होता है। तो जब ये चीज हो गया, तो कृष्ण व्हाट प्लान, कृष्ण टोल्ड, ओके, now they also saw some inauspicious event. So Krishna told, let us go to the Prabhas Kshetra. In Prabhas Kshetra ka glory Krishna bole. Prabhas Kshetra, so nice place. We do some charity, we do some yajna. Okay, we will purify ourselves. तो भगवान कृष्ण जब साल को प्रभास क्षेत्र लेकर आए, उसी पार्ट आ गया जो डेमिगॉड पार्ट है, जो इटर्नल पार्ट है वो द्वारका में छोड़ दिए। ऑल द यदुवंश जो थे ये सब द्वारका में छोड़ दिए। भगवान उसी पार्ट को लेकर आए। वहां पर मतलब वसुदेव, देवकी और उनकी जो पत्नी थे, उस सब जो इटर्नल, उनको छोड़ के बाकी जो जितनी जो उनका सन और ग्रैंडसन सभी को लेकर आए, जो डेमिगॉड पार्ट। वहां आने के बाद आप जानते हैं, तो वहां पर क्या शुरू हुआ, दे एक्चुअली डिड सम तपस्या, मतलब ऑस्टेरिटी, चैरिटी, दे ड्रिंक सम लिक्विड एंड दे फाइट देमसेल्फ। और जो कैन था जिसमें पाउडर से बना था, दे बीट देमसेल्फ। फाइनली कृष्ण बलराम दे आल्सो पार्टिसिपेट। एंड कृष्ण नहीं चाहते थे ये मेरा वंश को कोई दूसरा को मारेगा, कि हम खुद ही मारेंगे, बिकॉज नोबडी कैन किल, नोबडी कैन एक्चुअली किल द कृष्ण। कृष्ण का फेवर है, तो इसलिए भगवान ऐसे लीला किए। वहां से उनका डेमिगॉड पर्सन, दे गो टू डेमिगॉड, डेमिगॉड प्लैनेट। फिर द्वारका में जो पर्सन थे, फिर द्वारका से जब पानी भर गया, आफ्टर कपल ऑफ कुछ समय बाद, वहां से द्वारका पार्ट से जो इटर्नल डिवोटी थे वहां चले गए। तो ऐसे करके भगवान ये अपने लीला माध्यम से क्या किए, जब ये हो गया, सारा प्लानिंग हो रहा है, तो डेमिगॉड उस समय, डेमिगॉड इंक्लूड ब्रह्मा, जैसे आप पढ़ते हैं कृष्ण लीला में, भगवान पास गए थे, शिव जी, सारा डेमिगॉड ब्रह्मा जब प्रार्थना किए थे, भगवान प्लीज कम टू दिस अर्थ, तो भगवान आए थे। इसी प्रकार डेमिगॉड इंक्लूड ब्रह्मा भी आए, बोले भगवान आप एक्चुअली आपका लीला समापन हो चुका है, दे कम टू द्वारका। और उनको प्रार्थना किए, ब्रह्मा रिक्वेस्ट पर्सनली किए, प्लीज वाइंड ऑफ योर पास्ट टाइम। लॉर्ड बोले ओके, डोंट वरी, अभी मैं प्लान कर रहा हूँ, लेट्स यादव गो टू प्रभास क्षेत्र। और ऐसे प्लान हो रहा था, उद्धव जी अप्रोच टू लॉर्ड कृष्ण।
जब द्वारका में भगवान थे, उद्धव जी अंडरस्टूड कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं, अपना लीला समापन करने जा रहे हैं। तो उद्धव जी आता है चुपचाप में और ये बोलता है उद्धव जाके, प्लीज मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। ओके, सो बट उद्धव जी बोलते हैं नो, यू कैन नॉट, चलिए कृष्ण बोलते यू कैन नॉट गो। कृष्ण बोलते हैं देख उद्धव जी, मैं इस 125 years के अंदर आई हैव गॉन टू हस्तिनापुर, आई गॉन टू मथुरा, द्वारका, वृंदावन, एवरीवेयर, इवन दो एक्चुअली आई वेंट टू द बलि महाराज लोग, जमलोक, इवन दो महाविष्णु लोग, लेकिन एक जगह में जा नहीं पाया ड्यू टू सम रीजन, अधिकास्त्र। उस वक्त लोग बहुत दुखी है, ऑन माय बिहाफ प्लीज गो एंड गिव एंड एनकरेज देम, गिव सम टीचिंग, ये मेरा सेवा है, आफ्टर दैट यू विल कम टू मी। तो उद्धव वाज सो, मतलब दुखी इतना हो गया। देन उद्धव अप्रोच कृष्ण, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी हाउ आई कैन अकम्प्लिश योर इंस्ट्रक्शन। तो वहां पर उद्धव कह रहा है, आई एम डीपली ऑब्जर्व इन द कॉन्सेप्ट ऑफ आई एंड माइंड। मतलब भगवान के पास आके खुद ही अपना प्रॉब्लम बताया, हालांकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऑल्सो कृष्ण ही सेज, it's very difficult renunciation. You are explained just I am sannyasi, but I am attached to everything. How can I give up? Please, you are perfect teacher and perfect master, and please tell me how can I give up? This is the love setting of the Uddhav Gita. Just like Krishna also, when uh, put in between the actually the Kurukshetra war, Arjuna also told, "I'll not fight," and he start with the attachment. And also here, Uddhav is also saying same. This is actually contest scene actually. Had contest that Uddhav Gita and Gita is going. So now we'll go to the second part. So anybody has any question, comments here? So we'll take some reflection, then we'll further go ahead. Yes, Suchimata. Hare Krishna Prabhuji, can you just told 11 reasons for Mosla Leela? Can we get that written somewhere? I could not actually note down. I was busy with some household core. Okay, sure, we'll send it. Yeah, if you can get the written 11 reasons, that would be nice because it was difficult to write down. Thank you, Hare Krishna. Hare Krishna. Sheetal Mata, yes, Mata. हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। मुझे इसमें ये वैष्णव रीजन क्या बना, वैष्णव अपराध क्या बना, मतलब यदुवंशियों ने क्या वैष्णव अपराध किया, जो रीजन है उसमें वैष्णव अपराध कैसे था प्रभु? वैष्णव अपराध क्या, मजाक कर रहे हैं? चलिए देखो कितनी बड़े चलिए सीनियर डिवोटी है और वैष्णव में नारद मुनि, अब एक आयरन क्लब लेके झूठ झूठ बोल रहा है। चलिए झूठ बोलना एक वैष्णव अपराध है, बड़े बिगेस्ट वैष्णव अपराध है। आप सच्चाई कुछ पूछ सकते हैं, आप तो आयरन को लेके मजाक कर रहे हैं। चलिए जैसे उनको बेवकूफ बना रहे हो, तुमसे कहले खेल रहे हो, कुछ नहीं जानते, हम इंटेलिजेंट है, सूडो डिवोटी, पॉप अप डिवोटी है ना। तो जैसे बिगेस्ट वैष्णव। ओके ओके प्रभु, थैंक यू, गॉट इट प्रभु, थैंक यू प्रभु जी प्रणाम। Yes, Niladigar. Hare Krishna Prabhu, Hare I might have missed it. Actually, I wanted to know that this Uddhav Gita is a part of Srimad Bhagavatam, or a separate book? It's a part of Srimad Bhagavatam, it's 11th canto. Uddhav Gita, as per this chapters comes from 6th chapter starting and went up to 29. Actually, in 11th canto, there are 31 chapter, and first 5 chapter talks. First chapter talks about something Mosulila. Then second chapter to 5th chapter talks about the Bhagavad Dharma, Nimi and Navajana Kapasang. Then start again. Uddhav actually approached the Krishna, and demigod approached Krishna. From that, Uddhav Gita start and went up to the 29th chapter. Then finally, Yaduvan's disappearance and Krishna's disappearance, 30 and 31. So Uddhav Gita around is called 24th chapter, and almost around to 1100 verses, more or less. Okay. Yeah, 24 chapter, 1100 verses around, and that is the Uddhav Gita. And in the Uddhav Gita, but in ISKCON we get Uddhav Gita, different books in the sense that Gaudiya Parampara, Bhakti Thakur gives some commentary, and other acharyas give some commentary. They combine all commentary and put in Uddhav Gita form.
although it's actually Srimad Bhagavatam 11th chapter. Mhm. Actually, I have seen the book in the temple, but I was thinking I'm not eligible to read that at this moment. So I was just No, asking. no. Okay. Actually, just the Gita. That's why just that Uddhav Gita and Gita, that is parallel, equivalent, analogous story. Actually, we'll see actually all verse. The verse content here 700 verses is 1100 verses. Okay, sometimes one verse equivalent to and around 20 verses. With the one verse equivalent here actually something like that. We'll see. Now we're putting today the actually what contest Uddhavita started, what contest Gita started. After that, we'll go to now real content. Thank you, Prabhu. Hare Hare Krishna. Or anybody any reflection? Yes, Shrutimata, you have complete your hand raised. Okay. Okay. If nobody has any questions, your hand raising. Okay, please ask. Okay. So yes. So now we'll go towards deeper. So finally, when Krishna, Uddhava approached to Krishna, that shift is this instruction. He was speaking to give enlightened actually Badikas from devotees. But me myself actually has observed some attachment, okay, and I don't know bhakti like that, and how to give up the material enjoyment. It's very difficult. So like that, he just out of humility, or you can say Lord's, just like Krishna also out of Jogamaya, although he was devotee, again he developed attachment. Like that, he was telling I have attachment. But Krishna telling a very interesting point. Krishna gave him a nice story actually. He says, Krishna says there is a king Yadu, and once upon a time वो एक अवधूत ब्राह्मण देखा. So he was so detached and पूछा, okay, where have you attained your great intelligence? And ऐसे लगता है actually you are free from everything, and don't have any desire, not have been affected by any unearth. Okay, so you are so blissful. Can you enlighten me? So Abdut Brahman again plays mood. He gave a I have 24 guru. That actually episode started, and we're not going to now discuss all 24 because we are matching the verses Gita and the Bhagavatam. So one verse, just like in 24 Guru, there are various lessons also, and one Guru name also, and quality, and compared the part and also lesson that is there. But before that, in a 3.3 Canto 4 chapter 19 verse, when Vidur actually met Uddhav in the वृंदावन कि विदुर जो घूम फिर के जा रहे थे, जब घर से निकाल दिया था विदुर को, वो प्रभास खरीद गए थे, बहुत सारे तीर्थ स्थान गए थे. उसके बाद फिर मथुरा में आए और मथुरा में उद्धव को मिले. तो उद्धव को जब देखे, उनके बारे में पूछे कृष्ण कैसा है, यदुवंश कैसा है, क्यों, बिकॉज विदुर को पता नहीं था ये क्या हुआ है. लाइक दैट भगवान उस समय अपना लीला समापन कर चुके हैं. तो उद्धव जब भगवान बारे में कुछ बोलने जा रहे हैं, कुछ मुहूर्त के लिए सेंसलेस हो गए. मतलब मुहूर्त मतलब पर कितना घंटा उस समय, समझती 3 और 4 मुहूर्त. तो उद्धव जी इंतजार कर रहे थे, और उद्धव जी एक बात बोले इस श्लोक माध्यम से, इति आवेदित हृदय मह्यं स भगवान परः आदि देशा अरविंदाक्ष आत्मनः परमं स्थिति. I'm going to tell this what is paramam sthiti. So Uddhav is saying that जो भगवान है अरविंद अक्ष, भगवान की आंख कहता है, आंख होता है अरविंद, भगवान पर लोटस आइड लॉर्ड जो है, सो
जब भगवान पास उद्धव जी गया था, भगवान मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, तो भगवान क्या कि उनको ज्ञान दिए। क्या ऐसा ज्ञान दिए? ये एक्सप्लेन, डिटेल ज्ञान दिए। भगवान पहले भी ज्ञान दिए थे। किसको दिए थे? ब्रह्मा को दिए थे। फर्स्ट टाइम भगवान ज्ञान दिए ब्रह्मा। दैट इज कॉल्ड द, है ना, चतुर्मुखी भागवत। ब्रह्मा पूछा था, क्या पूछा था भाई? भगवान को पूछा ब्रह्मा, प्लीज टेल मी अबाउट योर मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म। और भगवान को उसका उत्तर भगवान क्या बोले? भगवान बोले, द लॉर्ड स्पिरिचुअल फॉर्म, है ना, executed before creation, even during creation, और after destruction, always भगवान रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा जो स्पिरिचुअल फॉर्म है, बिफोर है, आफ्टर है, इन ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द क्रिएशन ऑल्सो। जो मेटेरियल वर्ल्ड आप देखते हो, ये मेरा मेटेरियल फॉर्म है। यानी ब्रह्मा जी जो पूछे थे, प्लीज गिव मी, टेल मी और मेटेरियल एंड स्पिरिचुअल फॉर्म, भगवान उसका उत्तर में ऐसे बनाए थे। फर्स्ट चतुर्मुखी भागवतम। तो ब्रह्मा जी पूछे थे आपके, हाउ आर द डिफरेंट एनर्जी ऑफ द लॉर्ड वर्किंग। ब्रह्मा जी पूछे थे जब ब्रह्मा जी फर्स्ट टाइम भगवान का दर्शन किए थे, पद्म लोटस के ऊपर हैंडशेक किए थे, आफ्टर तप तप तप, सेकंड कांट में आता है। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं व्हाट आर डिफरेंट एनर्जी ऑफ लॉर्ड वर्किंग। तो उसके उत्तर में भगवान जी बताए थे सेकंड चतुर्मुखी, कहते हैं जो चीज आप भगवान से रिलेटेड देखते हो, एवरीथिंग व्हाट इज रिलेटेड टू कृष्णा, ओके, दैट इज सत। जो चीज नहीं है दैट इज असत। दैट मीन्स ये भगवान यहाँ माया का डेफिनेशन दे रहे। व्हाट इज माया? माया मीन्स एनीथिंग विदाउट रिलेशन विथ द लॉर्ड हैज नो रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड द इल्यूजन एनर्जी। एंड माया का दो पोटेंस, अविद्या पोटेंशियल, विद्या पोटेंशियल, दैट शी टॉक्स अबाउट द सेकंड एक्चुअली चतुर्मुखी। Brahma ji again asked the Tisra question, how the Lord carried out his pastime in relation to his energy. That means he, भगवान कैसा अपना एनर्जी साथ रिलेशन रखते हैं। तो उसका उत्तर देते हैं भगवान, लॉर्ड विदिन एंड आउटसाइड एवरीथिंग। दैट मीन्स ही भगवान अपने जुगोमय माध्यम से अपने संसार में, अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और इवन द डिवोटी साथ जुगोमय माध्यम से कनेक्ट करते हैं। भगवान अपनी एक्सटर्नल एनर्जी माध्यम से सारा कार्य करते हैं मेटल वर्ल्ड में। दैट इज योर आंसर फॉर लॉर्ड। दैट इज फोर्थ से थर्ड चतुर्मुखी भागवत। देन ब्रह्मा जी आस्क्ड फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज गिव मी गाइडेंस टू कैरी आउट द सर्विस विदाउट प्राइड एंड बॉन्डेज। यानी हाउ टू एग्जीक्यूट भक्ति। दैट कृष्ण सेज sadhana for attaining the Lord is bhakti. That means you do directly and indirectly. What is pleasing to me, that is bhakti. That means always remember Krishna, never forget Krishna. So overall 4 क्वेश्चन था ब्रह्मा जी का। एक तो भगवान का आध्यात्मिक और मटेरियल फॉर्म क्या है, भगवान की क्या एनर्जी है, और भगवान अपना एनर्जी साथ कैसे रिलेशनशिप रखते हैं, और भगवान को हम मतलब क्या कहते हैं जो प्राप्त करते हैं। ये 4 श्लोक जो है, 2 श्लोक होता है साधन संबंध ज्ञान, जो भगवान का रूप और भगवान की शक्ति, दैट इज द संबंध ज्ञान। जो तीसरा श्लोक होता है ये भगवान का एक्चुअली प्रयोजन, और फोर्थ क्वेश्चन जो होता है ये भगवान का जो हमको कहते हैं अविद्या, भक्ति द प्रोसेस, अविद्या प्रेम इन द प्रयोजन, एंड भगवान का जानना, उनकी एनर्जी जानना, दैट इज द मतलब संबंध ज्ञान। तो ये 4 श्लोक उसको चतुर्मुखी भागवत, ये ज्ञान दिए थे भगवान ब्रह्मा। अब उद्धव जी बोल रहे हैं, उद्धव जी क्या बोल रहे हैं? उद्धव जी ने मुझे ऐसा ज्ञान दिए, कहते परमम स्थिति ज्ञान दी। और परम स्थिति यानी जो ज्ञान एक्चुअली ब्रह्मा को नहीं दिए थे उसको भी दे दिए। यानी ये श्लोक बताते हुए, श्लोक है ये श्लोक बताते हुए, ये श्लोक कह रहे हैं एक्चुअली लॉर्ड मी परमाम स्थिति। और परमाम स्थिति, परम स्थिति मतलब होता है भगवान ब्रह्मा को वो ज्ञान नहीं दिए थे। कौन सा ज्ञान नहीं देते? He did not speak to Brahma in the Chaturmukhī that his inconceivable
past time, particularly dealing with the devotee in Dwarka and Vrindavan, उसके बारे में डिटेल ज्ञान नहीं दिए थे, जो कि उद्धव को दिए थे। इसलिए उद्धव कह रहे हैं आई गॉट परम स्थिति, जो भगवान मुझे दी। दैट इज द आचार्य कहते हैं व्हाट इज द परम स्थिति, दैट एक्स्ट्रा नॉलेज गिवन टू उद्धव। तो इसलिए अब गीता जैसे हम पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, राइट, सो यहाँ पर एक श्लोक कोट करते हैं जो उद्धव गीता में, जैसे मैं बताया था जो 24 गुरु, उसमें एक गुरु के बारे में हम लेते हैं, जिसमें हम कंपेयर करते हैं कैसे उद्धव गीता के साथ भगवत गीता का चलता है। एक गुरु है, वो है दैट इज विजन। तो उसमें शिक्षा क्या मिलता है, ये 8 नंबर का चलित गुरु है। कैसे एक बहुत तोता था, वो मर गया, क्यों? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव अफेक्शन टू द फैमिली मेंबर। तो उसको कंपेयर करते हैं लिविंग एंटिटी के साथ, और उससे लेसन मिलता है क्या है, एक्सेसिव अफेक्शन इज द कॉज ऑफ फॉल डाउन एंड सफरिंग। तो ये श्लोक होता है, मैं आपको शो करता हूँ श्लोक नंबर, ओके, 11.16.6 तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर 11.16 में, ये एक श्लोक है जो आ, 11.16.6 यस, यहाँ पर है now you see screen, able to see, yes or no? Yes, Prabhuji, we are seeing. Yes, Prabhuji, we can see Okay. it. So now he भगवान उवाच एवं एतत् अहम पृष्ठ प्रश्नम प्रश्न विधाम वर युत सुना विनाशने सप्तत नैर अर्जुनेन वै। क्या भगवान बताना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं, can see the supreme personality God is said, "O best of those who know how to inquire that on battle of Kurukshetra, Arjun desired to fight with the rival. Ask me the same question that you are now posing." So भगवान यहाँ बताना चाहें, Lord saying that whatever asking, Lord saying to Uddhav, what are asking, same question is actually asked by the Arjun, ना? So अर्जुन एक्चुअली आप देखेंगे भगवत गीता में कितना क्वेश्चन पूछा है, टोटल आप काउंट करेंगे अर्जुन कितने, आप इसे होमवर्क फॉर यू नेक्स्ट क्लास, अर्जुन हाउ मेनी क्वेश्चन ही आस्क्ड टोटल थ्रू द गीता है। तो यहाँ पर भी पूरा उद्धव गीता में लगभग उद्धव जी भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो बताते हैं क्वेश्चन
अराउंड 21 क्वेश्चन पूछा है उद्धव जी, पूरा 24 चैप्टर में कुल मिला के। तो आपके लिए होमवर्क है, भगवत गीता पूरा 18 चैप्टर में अर्जुन कितना क्वेश्चन पूछा है। तो भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं से जैसे अर्जुन पूछा था, इंक्वायरी किया था, ओके, सो प्रश्न विदम बर, हु द एक्सपर्ट है, हु द बेस्ट, है ना, और जो फाइट करने जा रहा था कहाँ पर, विनाश इन द कुरुक्षेत्र, ओके, सप्त ने ही उसकी जो एनिमी के साथ, नाउ यू आर आस्किंग द सेम थिंग, सेम टाइप क्वेश्चन। तो इसलिए भगवान कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं, देन बोथ आर गुड डिवोटी, बोथ आर साक्ष्य भाव। सो लॉर्ड इज सेइंग दैट जैसे अर्जुन पूछा था ऐसे आप चलिए मुझे पूछ लो। अब प्रश्न अब क्या हो रहा है, जैसे अर्जुन पूछा था क्वेश्चन, राइट, तो ऐसे आप भी पूछ लो। तो अंत में क्या हुआ, अंत में जब फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं भगवत गीता का, उसमें अर्जुन डिस्कस करता है डिफरेंट में कॉजेस, जो मैं फाइट नहीं करूंगा, राइट। बाद में क्या होता है, गांडीव छोड़ के बढ़ जाता है। ये पूरा एक्स लेके पूरा आप देखेंगे 46 श्लोक जो है ना, जो अर्जुन फाइट करना नहीं चाहता है। तो इसी प्रकार क्यों नहीं चाहता है, वो पूरा आसक्त हो चुका है। इसी प्रकार 7:11.7.52 में ये जो हम श्लोक दिखाई दे रहा है सामने, ये श्लोक कह रहा है, नाति स्नेह प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचिन कुर्वान् विदन्ते संतापम कपोत कपोत इव दीन कपोत इव दीन धी, यानी इसका बुद्धि क्या हो गया। If you see the meaning of the verse, ना अति स्नेह, तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन है, one should never indulge in excessive affection or concern for anyone or anything, otherwise one will have to experience the great suffering just like foolish pigeon। जैसे पिजन मतलब तोता है, जैसे मूर्ख तोता अपना मतलब अफेक्शन हुआ बहुत सफर कर रहा है, इसी प्रकार यहाँ पर भी ये शिक्षा मिलता है। प्रसंगेन, प्रसंग शब्द है ना, ना अति स्नेह प्रसंगेन, सो ना अति स्नेह, एक्सट्रीम अटैचमेंट, प्रसंग मतलब संग होना, प्रकृष्ट रूप में संग करना, है ना, सो मीन्स full very fondingly, so if somebody does that, कर्तव्य करता है, तो क्या होता है, उसको संताप मिलता है। संताप मीन्स ग्रेट सफरिंग। कैसे, कपोत जैसा, दीन धी, उसकी बुद्धि खत्म हो चुका है। ये एक्चुअली श्लोक होता है। और यहाँ से लेके ये जो 52 से श्लोक लेके लगभग आप समझिए 40 श्लोक 11 चैप्टर के 11 कांटों का 7 चैप्टर से ये 52 वर्स से शुरू कर रहे हैं, वहां से लेके 72 लगभग ये पास्ट टाइम डिस्क्राइब करता है। क्या है, कैसे मतलब एक तोता, कबूतर, तोता नहीं कबूतर, कैसे परेशान हो रहा है। क्यों क्यों परेशान हो रहा है, इसीलिए हो रहा है इस टू आटास, अति स्नेह प्रसंगवा, इसलिए कह रहे हैं भगवान क्या, कैसे यहाँ पर अवधूत ब्राह्मण क्या कह रहा है, न अति स्नेह मत करो, क्योंकि प्रसंग में क्लोज एसोसिएशन करेंगे
तो क्या होगा, कर्तव्य क्या, वन शुड मैनिफेस्ट, क्या होगा, आप एक्चुअली किसके प्रति हो, एनीवन विद एनीथिंग, तो क्या होगा, वन विल एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस करोगे, संताप, ग्रेट डिस्ट्रेस, जस्ट लाइक ए विजन कपोत एक्चुअली दीन और हीन। की होता है कि ब्रॉड माइंड होता है, एक होता है नैरो माइंडेड, एक ओपन माइंडेड। तो नैरो माइंड जो होता है, क्रिपल माइंड होता है, जो दीन धी, उसका बुद्धि कारण से क्या होता है, सफरिंग कर रहा है। सो इसलिए भगवान एक्चुअली इसे पहुपात कॉर्पोरेट लिखते हैं, एक्चुअली इसके बारे में पहुपात के डिसाइपल लिखते हैं, उसको लिखते हैं एक्चुअली जो शुद्ध होता है कौन है, भगवान कृष्ण, शुद्धम सर्वभूतान, उसको प्रति स्नेह रखोगे देन नो प्रॉब्लम, अदरवाइज किसके प्रति आप स्नेह रखोगे ज्यादा, एक्सेस अटैचमेंट, दैट इज ऑलवेज प्रॉब्लम। अति स्नेह, अति स्नेह कहते हैं अनवांटेड अफेक्शन, जैसे हम लोग मतलब यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, इफ आवर अफेक्शन or attachment for others based on the bodily sense gratification in name of society, friendship and love and excessive unwanted affection, that will cause burning in pain at time of the breaking or destruction of relationship. तो ये चलिए जो श्रीमद् भागवत में हम पढ़ रहे हैं, और इस प्रकार भी एक्चुअली पास्ट टाइम मिलता है कहाँ पर, 7th कांटो में। 7th कांटो में जब हिरण्याक्ष खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो उसका पत्नी सारा परिवार दुखी होते हैं, और वहां पर इतना दुखी होते हैं, हिरण्यकशिपु ज्ञान देता है, इवन द हिरण्यकशिपु कंस, दे नो द नॉलेज ऑफ सोल एंड बॉडी, इतना ज्ञान देता है, बट इंफॉर्मेशन ओके, बट एक्चुअली एप्लीकेशन रॉन्ग। तो इतना ज्ञान देता है, डोंट आटा दिस थिंग, तो यमराज स्टोरी बताता है, 7th कांटो में आता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं excess attachment not good. Why I am telling this point? Because भगवत गीता भी अटैचमेंट शुरू होता है। देखिए मोह एंड शोक, गीता का था मोह, गीता जो अर्जुन का था मोह, और युधिष्ठिर महाराज भी शोक में रो रहे थे जब भगवान कृष्ण बोले आप राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, दुष्मन नहीं बन रहे थे। तो इसलिए भगवान कहते हैं अद्भुत कर्मणा, युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं राजा युधिष्ठिर आप बन जाओ, चिंता मत करो। इवन तो व्यासदेव बोले चिंता मत करो, किसकी बात नहीं सुने। भगवान एक्चुअली ये दिखाना चाहते हैं मेरा बात मत सुनो, बाहर से बोलो, अंदर से परमात्मा रूप से कृष्ण से डोंट लिसन टू मी। क्यों? कृष्ण वांटेड टू ग्लोरीफाई कृष्ण विष्णु, अपना डिवोटी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को लेकर चलते हैं जहाँ कुरुक्षेत्र में कृष्ण के पास। सो दैट कृष्ण अद्भुत कर्मणा, एक्सटर्नल ही स्पीकिंग थ्रू व्यासदेव, बट युधिष्ठिर महाराज क्राइंग, सारा जो संसार में लोग मर गए, सो मेरे से मर गए। तो इसलिए भगवान यहाँ पर उसका शोक भी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। अर्जुन का मोह था वो खत्म नहीं कर पा रहे थे फ्रॉम बिगिनिंग, बाद में उनको ज्ञान मिला यस ओवरकम। तो यहाँ पर ये भी जो पास्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेसन ले रहे हैं। सो ये कपुत्र क्या कर रहा है, ये वर्ड से कपतः कसन आर्यने कृत नीडो वनाक्षो कपत्या भार्या सरदाम उस्सास कच्चित स्नव। तो ये स्टोरी बता रहे हैं पूरा, आप जानते हैं। That once was a pigeon who lived in the forest along with his wife. He had built a nest within the tree and lived there for several years in your company. अपना पत्नी के साथ चलिए वहां पे बहुत साल तो रुका था। तो क्या हुआ, कहते हैं कपतो स्नेह गुणिता उदयो गृह धर्मन्यो दुष्टि दुष्ट्यागम अंगेन बुद्धिम बुद्ध्या बांधवतु। So the two pigeons were very much devoted to their household beauty, their hearts being tied together by sentimental affection. They were each attracted by others' glance, bodily features, state of mind. Thus, they completely bound each other. इतनी शारीरिक आध्यात्मिक बंधन में आ गए, है ना, उनके
बॉडी फीचर में उनकी मन उसमें डूब गया और हाउस होल्ड वाइफ ड्यूटी करते रहे। व्हाट हैपन? फाइनली इतने अट्रैक्ट रहता है, इसलिए कहते हैं जब हम खास करके ये मेटल अटैचमेंट रहते हैं तो हम भगवत विस्मृत हो जाते हैं, वी फॉरगेट टू लॉर्ड एक्चुअली। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं pale reflection of actual pleasure thus becomes foundation of false life based on forgetfulness of absolute truth। तो फिर क्या हुआ? Then सन्नातनस्तान वार्ता केड़ा सनादिकम म्युथिनी भूय विष्णु चेरतुर्वन राजिशो। तो क्या किए? Naively tossing in future, they carried out their act of resting, sitting, walking, standing, conversing, playing, eating, so forth. So loving couple among tree of the forest। जैसे हम लोग घर में खाते पीते रहते हैं सब कुछ, तो आज husband wife ना, that male pigeon, female pigeon, this husband wife this take in the forest nights। Then यम यम वांछति स्वराजन तर्पयन्ति अनुकंपिता तम तम सामान्यत कामन कृच्छन्यापि अजितेन्द्रिय। तो क्या हुआ? whenever she desire anything, मतलब female wife desire anything, O king, the sea pigeon would flattering casual husband, and he in turn would gratify her by faithfully doing whatever she wanted, even with great personal difficulty. Thus he could not control his senses in her assistance। Finally, it's natural in the sense control, uncontrolled is natural, because the material attached। So इसलिए जैसे अजामिल के हम देखते हैं, अजामिल when got the prostitute as a wife, वो भी uncontrolled हो गए। Like that, husband will get uncontrolled। Finally, तो लेडी जो पिजन था क्वाइट एक्सपर्ट, जनरली बताते हैं। तो वहां पर फाइनल क्या हुआ? दे डोंट इवन दो फॉरगेटफुल, दे भूल गए एक्चुअली। क्या भूल गए? कपति पथतम गर्भम गुणाति काल अगते अंडानि सुषुवे नीड़े सत्वत्यो सनिधो सती। Female pigeon experienced a fast pregnancy. When the time arrived, the stressed lady delivered a number of eggs within the nest in the presence of her husband। तो अंडा दे दिया ना, प्रेगनेंसी हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ? Then तेषु काले व्यजयन्त रचिता वयो हरे शक्ति वीर दुर्विभाय यभि कोमल अंग तनुरुहा। So when time was right, baby pigeon with the tender limbs, either created by the inconceivable potential Lord and born from the eggs। टाइम आया तो वहां पर उनके बच्चा प्रकट हुआ। Then प्रजापो पुष्पतो प्रेतो दंपति पुत्र वत्सलो सुनबंतो कुजितम सासम निर्वतो काल भासितहि। Then two pigeons become most affectionate to their children, to great pleasure in listening to their awkward chirping, which sounded very sweet to the parents. Thus, with love they began to raise the little birds who were born of them। आप जानते हैं छोटे बच्चे का आवाज सुनने के लिए अच्छा लगता है, चिट 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 चिट, उनके बच्चे का आवाज सुनना अच्छा लगा। Then finally, तासाम पतरहेषु सर्पसै कुजितै मुग्ध चेष्टितै पत्यदुमने आदिनामं पीतरमुदम आपातो। Their parents bird become very joyful by observing the soft wing of their children, their chirping, their lovely innocent movements around the nest, and their attempt to jump or fly। Seeing their children happy, the parents are also happy। बच्चे आनंद हो रहे छोटे छोटे, बाबा मामा, they're happy also। Like that, आनंद अदीनानंद मतलब जयफुल हो गए। Then स्नेहानुबद्ध हृदयो अन्योयम विष्णु माया विमोहितो दीन धीयो शिशुन पुष्पतो प्रजा। तो क्या हुआ? The hearts bound to each other by affection, the foolish bird, completely bewildered by the religious energy of Lord Vishnu, continued to take care of the young offspring who had been born to them।
तो धीरे धीरे पूरा इतना अटैचमेंट हो गए, भूल गए है ना, भगवान की महाशक्ति और सब भूल गए, जस्ट बच्चे को देखभाल करना उनका हो गया, टेक कैरी ऑन दैट लाइफ। देन एकदा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ से हुआ, वो तो फैमिली मेंबर हुआ, बच्चा हुआ। एकदा एक दिन क्या हुआ, एकदा जगमत सुतासाम अनाथम तौ कुटुंब विनो परितः कानने तस्मिन आर्थिनो चेरतु चिरम। क्या हुआ, वन डे टू हेड ऑफ द फैमिली वेंट, उसका पिता माता जो थे चले गए बाहर, किसके लिए चले गए, खाना ढूंढने के लिए अपने बच्चे के लिए, और being very anxious to feed their offspring, अपने बच्चों को खिलाना है। They wander all over the forest a long time, इधर घूमे बहुत समय तक, कुछ मिला नहीं, फिर आए वापस। दुष्ट्वा तान लुब्धखः कश्चित् यदृच्छात् वनेचरः जागृहे जालम आतत्य चरत सुलायन्तिके। तो जब पितामह चले गए थे, अब वो क्या हुआ, उस समय एक हंटर आ गया। हंटर आके क्या क्या फॉरेस्ट में आया, और जो छोटे बच्चे थे उनको देखा, हाँ वो घूम रहे आसपास, तो फिर क्या क्या अपना जाल डाल दिया और कैप्चर कर दिया। अब कैप्चर कर दिया, अपना पिता माता आए वहां पर, तो वो आए, कपतश्च कपति च प्रजापोषे स्वदो शुको गतोपोषणम आदाय स्वनीडम उपजामतु। तो पिजन, उसका हस्बैंड वाइफ जो बाप माप क्या हुआ, सो एंशियस फॉर मेंटेनेंस चिल्ड्रन। अब वो लोग घूम रहे जंगल में फॉर दैट पर्पस। अब प्रॉपर फूड जो मिला, तो फिर वापस आए अपना खाना लेके बच्चे के लिए। अब खाना जब लेकर आए पोषण करने के लिए, क्या हुआ, कपति सो आत्मजान दीक्षा बालकांचाल समृद्ध समृद्धान तान अवयधावत कृष्णति कृष्णाधुर्षा दुखितः। तो देखे क्या हुआ, when लेडी फिजन, तो माँ देखा अपनी बच्चा ट्रैप हो चुके हैं हंटर के जाल में, तो तुरंत बहुत दुखी हुआ, चिल्लाने लगा, गुस्सा होके अंदर घुस गया। अभी हैं माँ, मतलब सोचा नहीं क्या होगा भाई, मैं तो भाई बच्चा को बचाऊंगा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगा। She rushed towards them as they cried out to her return। ऐसे करके अंदर खुद ही घुस गया है। यार अपना पिता देख रहा है आउटसाइड। सकृत स्नेह गुणित दीन चिता च माया स्वयं च अबधयात शीशा बाधन पश्यति अपस्मृति। The lady pigeon had always allowed herself to bound by ropes of intense mental affection. Thus her mind was overwhelmed by anguish. Being in the grip of illusion energy of Lord, she completely forgot herself and rushing forward for helpless children, she was immediately bound by hunter। वो इतना अटैचमेंट था, वो देखा नहीं यार जाल के अंदर घुस के अभी मैं बचाऊंगा तो कैसा, तो सोचा नहीं, अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत घुस गया और जाल में घुस पड़, खुद ही गिर गया। तो ये अफेक्शन है, क्योंकि भगवान की माया कारण से इतना अटैचमेंट था, तो इसीलिए तो वो भूल गया सब कुछ, है, और बहुत दुखी होके जाल में घुस गया। देन कपत स्व आत्मजान बाधन आत्मन अपि अधिकान प्रियान भार्यान च आत्मा समम देन बील लप्ति दुखित। अपना हस्बैंड देखा, अपना बच्चे चले गए और साथ साथ अपना पत्नी चली गई जाल के अंदर, डियर मोस्ट वाइफ। अब क्या होगा, तो फिर वो दुखी होके रोने लगा वहीं पर बैठ के, है ना। मेल पिजन बिगन टू लैमेंट वेरी रिचुअली, तो इसीलिए वो भी लैमेंट करने लगा। फिर आगे क्या हुआ, ओहो मैं पश्चातापयम् अल्प पुण्यस्य दुर्मतेः अत अत अतृप्तस्य तातृतस्तार्थस्य गृहस्थै वर्गीकृतः। वो कह रहा है, आस जस्ट सी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं इतना मूर्ख हूँ, है ना, मैं पपड़ कुछ अच्छा कार्य नहीं कर पाया, पायस एक्टिव नहीं कर पाया। I could not satisfy myself, nor I could fulfill purpose of life, my dear family, है ना, जो मेरा एक्चुअली धार्मिक अनुष्ठान, आर्थिक अनुष्ठान और इंद्रिय तृप्ति के हेल्प करते सब खत्म हो गया, हेल्पलेस हो गया। तो वो भी लैमेंट करने लगा। तो फिर यहाँ पर है अच्छा कमेंट्री होता है, बट बताते हैं सिद्धो स्वामी और ऐसे बताते हैं। Anyway, so mainly फिर बाद में क्या हुआ, then अनु
अनुरूपाय अनुकूलच्च यस्य मे प्रतिदेवता शून्य गृहे माम संत्याज्य पूर्ते सो याति साधुवे। तो कह रहे हैं माय वाइफ माई सेल्फ आइडल मैच, हम दोनों से पूरा मिलन है, दैट इज कॉल्ड द, है ना, देन हम इतने मैच थे। शी ऑलवेज फेथफुल ओबेड मी, आज्ञाकारी पत्नी थी, हाँ, और मुझे पूजा करती थी। और उसके बाद जो चिल्ड्रन देखा, अपना चिल्ड्रन हार गए, घर भी खाली हो गया। सो शी लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट बिहाइंड एलोन। अब क्या होगा? तो एंड गॉन टू हेवन विथ ही आवर सेंट चिल्ड्रन। तो ये लैमेंट कर रहा है बैठ के, देखिए, दैट इज द लैमेंटेशन, एक्सेसिव अटैचमेंट लैमेंटेशन हो रहा है। देन फाइनली क्या कह रहे हैं, जस्ट वन श्लोक विल कंप्लीट नाउ, ओके, वी आर ओवर टाइम एक्चुअली। सोहम शून्य गृह दीन मृत दारो मृत फ्राजा दिजीवी से किम अर्थम बा विदुर दुख जीवित। क्या कह रहे हैं, नाम मेरा घर खाली हो गया, मेरा पत्नी चला गया, मेरा बच्चा मर गया, तो मेरे जीने के क्या फायदा है? तो मेरा हृदय फिर क्या हो रहा है, ये विरह से सफरिंग कर रहा है, ऐसे करके हो रहा है। ताम तथैव बातृवांशिक वीर मृत्युर्घातन विशेषतः स्वयं च कृपण शिक्षु पश्चन अपि अबुध अपतत। कहते हैं जो फादर था ऐसे सोच रहा है, ऐसे सोच सोच के क्या हो रहा है, वो भी जाल के अंदर ट्रैप हो गया, है ना। तो फिर उसके माइंड भी पूरा ब्लैंक हो गया और वो खुद ही मतलब जो हंटर के नेट में आ गया। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं तम लब्धा लुब्धत कुरहे कपतम गृह मेदिनाम कपतकान कपति किंच सिद्धार्थ पयोदहम। And cruel hunter, having fulfilled his desire by capturing the head is a male partner, his wife and all children set off for his own home. तो फिर वो अपना घर चला गया। एवं कुटुंब्या असंतापना द्वंद्व भारणम पतरेति बत तुष्ण कुटुंबम कृपणम सानुबंध अवस्थिति। तो फिर क्या, इन दिस वे too attached to family life becomes disturb a heart like the Kapotartha. He tried to find pleasure in mundane satisfaction, busily engaged in maintaining his own family. Miserly person is fated to suffer greatly along to all family members. तो ये एक्चुअली मतलब बात मतलब बोल रहे हैं, तो यही बात कह रहे हैं, जैसे मतलब ह्यूमन लाइफ मिला है, ह्यूमन लाइफ मिला किसके लिए, एक्चुअली लिबरेशन के लिए, बट ह्यूमन लाइफ को हम ऐसे लॉस करेंगे देन तो हमारा फॉल डाउन होगा। तो ये पास्ट टाइम एक्चुअली इसलिए हम डिटेल सुने। इस प्रकार एक्चुअली 24 गुरु के ऊपर कैसे एक एक पास्ट टाइम से एक लेसन मिलता है। तो ये एक्सेस अटैचमेंट से परेशानी। अब अर्जुन का क्या हुआ, एक्सेस अटैचमेंट में उसको ऐसे ज्ञान हुआ। तो दोनों से आप कंपेयर करेंगे एक्चुअली लेसन। ये फर्स्ट चैप्टर जो आता है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, है ना, विषाद जोग जो होता है। तो यहाँ पर भी इसमें हम समझ सकते हैं ये जो अटैचमेंट, तो दो जी पूछ रहा है मेरा से अटैचमेंट है और इसके अटैचमेंट से स्टार्ट आवर नॉलेज, और वहां से कैसे डिटैचमेंट होगा, रिनाउंस होगा। फर्दर विल सी द नेक्स्ट क्लास एंड विल आपके लिए होमवर्क है कितनी एक्चुअली क्वेश्चन अर्जुन पूछा है भगवत गीता में, दिस इज होमवर्क फॉर यू। और विल सी आल्सो one question Arjun to one question of Uddhav also comparing. Okay, sorry because of over time. Anybody has any question points? You can take, otherwise stop. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Yes, ma'am. अब प्रभु जी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि अर्जुन ने पूरे गीता में कितने क्वेश्चंस पुट किए, ये हमें कैसे करना है, मतलब ये हम गूगल पे सर्च करें या हाउ आर वी? आपका भगवत गीता है ना, why Google? You just open भगवत गीता and see the verse actually अर्जुन बात कहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है, note down, then you can find out actually कितना क्वेश्चन पूछा किस चैप्टर में, then find out what question which chapter. Understand? क्योंकि मैं उद्धव गीता के ऊपर डिटेल जाऊंगा, भगवत टच करूंगा, भगवत ऑलरेडी पढ़ चुके हूँ,
आई विल टेक उद्धव गीता डिटेल वेयर एवर पॉसिबल। जैसे मैं आज एक सेक्शन लिया, मैं 24 गुड्स नहीं, लेकिन ये सेक्शन लिया टोटल लिटिल श्लोक के साथ ओवर, तो का बाद में आप पढ़ सकते हो। सो भगवत गीता के मैं आपको होमवर्क दूंगा, वट एवर आई विल गिव भगवत गीता, आई विल गिव होमवर्क। उद्धव गीता वेयर एवर पॉसिबल आई गो डिटेल, है ना। मैं आज और डिटेल जाने वाला था उस कमेंट्री, बट मैं नहीं लिया क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था एटलीस्ट इतना पार्ट, अदरवाइज आधा हो जाएगा, इसलिए। यस, विल कवर नेक्स्ट टाइम। देखो, यस स्मृति करुणा देवी माता, यस यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। हरे यस प्रभु जी, वो जो 11 पॉइंट्स थे वो तो समझ में आ गए मौसल लीला के। बस वही क्वेश्चन था मेरा कि प्रभु जी पार्षद भगवान के तो ब्रज में भी थे, हाँ। तो वहां पे क्यों नहीं ब्रज ब्रज तो क्यों में नहीं ऐसे किया? ब्रज में जो लीला है उसमें भी देखिए, जब भगवान एक्चुअली जो धारा, जो आप यशोदा और नंद महाराज का पास टाइम सुनते, भगवान की जो कार्तिक महीना में दामोदर लीला आप पढ़ते हो, उसमें उसमें परीक्षित महाराज जी। को भी पूछते हैं वो एक्चुअली यशोदा, कोई यशोदा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सुख गोस्वामी बोलते हैं ये धारा और द्रोण थे, और ब्रह्मा जी की प्रार्थना जी। किए थे, तपस्या किए थे, और फिर वो भगवान की फादर मदर बन गए। बट परीक्षित महाराज को आनंद नहीं आया, समझ गए सुख गोस्वामी एक्चुअली आनंद नहीं। तो फिर स्पेशली ये दामोदर पास टाइम होता है हु इज यशोदा, देन ही एक्सप्लेन चैप्टर 8 और चैप्टर 9 हु इज यशोदा, देन वहां बता रहे हैं इटर्नल फादर मदर। वहां पर भी ये लीला में वर्णन होता है, जो जीवात्मा एक इटर्नल डिवोटी होते हैं, नित्य सिद्ध जीवात्मा होते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग लेने के लिए जो आत्मा चाहते भगवान लीला में होना चाहते हैं, तो ब्रह्म लीला में, ब्रह्म वृंदावन में जहां जहां लीला होता है, तो उनके शरीर में वो ट्रेनिंग लेते रहे। यानी एक शरीर में दो दो जीवात्मा होते हैं। जैसे उद्धव जी भीष्मदेव, उद्धव जी भीष्मदेव एक वसु है, वो भी नित्य सिद्ध है। भीष्मदेव भी एक्चुअली भगवान की जो पार्थ सार्थ प्लैनेट में है, विष्णु पूजा करते हैं, बट भीष्मदेव के वसु भी है ना। उद्धव जी भी ऐसे हैं। तो ये अच्छा अर्जुन जैसे, अर्जुन आप उनके भी एक्चुअली भगवान सखा है, और वहां पर देव जो डेमिगॉड पर्सन है। तो जितने भी सब भक्त होते हैं जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आइदर डेमिगॉड और जो भी पायस सोल है, वो आते हैं नित्य सिद्ध शरीर के अंदर, वहां होते हुए उनका ट्रेनिंग चलता है, तो वो पार्ट एक्चुअली चले जाते हैं। तो उसका लीला जनरली, मतलब हम जैसे वृंदावन की आप बात कह रहे हैं एक्चुअली, तो जनरली हम भगवान जाने के बाद वो कैसे लिए, मतलब कैसे उनको यहाँ से मतलब भगवान धाम लिए, और वो सब गोपाल चुम्पे सब मिलेगा। तो आपको बाद में कोई, मेरे को भी इतना मतलब याद नहीं माता जी, सो मैं कभी सुन के बताता हूँ। जी प्रभु जी। प्रभु जी सेकंड क्वेश्चन भी पूछ लूं अभी फटाफट से, वही जो क्या? मेरा क्वेश्चन, तो मुझे ना उस टाइम आप ऑडिबल नहीं थे। क्या था? वही था प्रभु जी, जैसे हम जैसे आप ये बोलते हैं रिपीटेडली कि हम ये रियलाइज करें कि ये दुखालयम है, एंड देन बट माय क्वेश्चन वाज हाँ एक्चुअली माता जी, आई टेल यू व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। आप जो श्लोक पढ़ते हैं ना, जनरली मतलब श्लोक का हाफ मीनिंग लोग है ना, तो फिर आप गलत कर सकते हो। इस श्लोक आप फुल पढ़िए, आप जो कह रहे हो ना, इस श्लोक का 18.15 श्लोक, 18.15 श्लोक है, वो होता है माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालम अशाश्वतम, ये मतलब पहला लाइन। सेकेंड लाइन है नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गति। भगवान ये क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। भगवान इससे पहले श्लोक क्या बोलते हैं, देखिए भगवान ने पहला श्लोक, उसका पहले 14 श्लोक बोलते हैं अनन्य चतत सततम, अनन्य चतत सततम यो माम स्मरति नित्यस तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य उक्तस्य जोगिन। जो भगवान की केवल भक्ति करता है वो आसानी से सुलभ से भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है, ये श्लोक आता है। उसके जगह से कंट्रास्ट देते हुए मेटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये मेटेरियल वर्ल्ड की बात बता रहे हैं। कहते हैं मां उपत्य पुनर्जन्म, जो मेरे पास एक बार आ जाता है, नेवर कम टू अगेंस्ट मेटेरियल वर्ल्ड। फिर कहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड, ये के 3 मतलब सपोज 4 लाइन लेंगे तो आपको 8 शब्द जो है दुखालम अशास्त्रम, वो कह रहे हैं मेटेरियल वर्ल्ड में क्यों नहीं आना है, कि मेटेरियल दुख का परिपूर्ण है। इसलिए मेरे पास कोई आ जाता है तो ये मेटेरियल को आना नहीं पड़ेगा, कि मेटेरियल वर्ल्ड दुखालम है। फिर कहते हैं नाप्नुवन्ति महात्मा, जो महात्मा होते हैं वो कभी नहीं आते हैं। देखिए कितनी बार पहला लाइन कह रहे हैं जो मेरे पास आता है वो यहाँ आना नहीं चाहता है,
तीसरा लाइन बोलते हैं एक्चुअली नापनुमति महात्मा, तो ये महात्मा मेरे पास एक्चुअली आते हैं बट वो ये वर्ल्ड को रिटर्न नहीं करते हैं। संसिद्धि परम गत, उनको हाईएस्ट परम गत मतलब क्या, हाईएस्ट गोल मतलब सर्विस मिल जाता है, मेरा दिव्य सेवा आते हैं। यानी 3 लाइन मतलब उसको तोड़ के रखेंगे है ना अनुस्पर्श छंद में, तो 32 अक्षर को 8 लाइन, 8 फेल लाइन हो गया, तीसरा लाइन हो गया, 4th लाइन वो हो गया भगवान पास जाने का। एक लाइन में बोला गया एक्चुअली दुखाणम असातम, इसको आप समझिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। जैसे मान लो अभी ठंडी मौसम में आप हिमालय जाना है, हिमालय एक्चुअली ठंडा रहेगा, तो आपको हिमालय बारे में पता चल गया, तो आप हिमालय जाना है तो आप क्या करेंगे, हिमालय के ठंड खत्म करेंगे, यू प्रिपेयर योरसेल्फ विथ मतलब गर्म कपड़ा लेके जाएंगे, बताइए माता जी। खुद को प्रिपेयर करेंगे, गरम गरम कपड़ा लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ये कहना चाहते हैं, डोंट ट्राई टू एक्चुअली जो दुख है खत्म करने की कोशिश मत करो, वो दुख रहेगा, बट यू प्रिपेयर योरसेल्फ सो दैट यू कम ओवर दिस मेटेरियल वर्ल्ड, दैट इज जो भगवान बताना चाहते हैं, एनकरेजमेंट है। लेकिन जब प्रेजेंट करते हैं भक्त लोग, उसको प्रेजेंट करते हैं ऐसे दौड़ा के, तुम जीवन बेकार हो गया, संसार में पढ़ रहे हो, मर रहे हो। अरे सब लोग मर रहे, कौन नहीं मर रहा है बताओ, एनीबॉडी टेल मी कहाँ पर बोलेगा मैं खुश हूँ, तो उसको डराने की क्या बात है। भगवान तो डराने की बात नहीं बोल रहे गीता के अंदर इस श्लोक में। भगवान ने मतलब 3 लाइन देखोगे, भगवान कह रहे हैं यू कम टू काउंट मी, यह संसार परेशान होगा, बट हम लोग प्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंटर ऑफ द श्लोक को, वो गलत उपाय होते हैं। बट भगवान कृष्ण यहाँ पर आचार्य कमेंट्री में पढ़ोगे तो वहां पर भी ऐसे नहीं बोलते, दुखारे मसा तो नो डाउट, ठीक है। जैसे कोई आप ठंडे हिमालय जाओगे ठंडा लगता है, बट वी हैव टू प्रिपेयर टू ओवरकम दैट, भगवान यही कहना चाहते हैं। ऐसे ये डरा रहे हैं गिव अस फियर, ओके यहाँ पर परेशान हो, परेशान परेशान, ये तो परेशान है, तुम्हें क्या है, दैट इज द एनकरेजमेंट श्लोक, इट्स नॉट डिस्करेजमेंट श्लोक, दैट इज पॉइंट। इट्स ओके माता जी। जी समझ, एब्सोल्युटली प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू गो टू द एक्चुअली अगेन नेक्स्ट वर्स, ये कह रहे हैं रीबर्थ इज ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट कृष्ण। देखो आप यू सी द एक्चुअली होता है ना, कोई बात आप बोलते हो उसका पूर्व पक्ष होता है परम पक्ष ना। 8.15 श्लोक जो दुखालम शास्त्रम, उसका पूर्व पक्ष देखोगे, कह रहे हैं अटेन कृष्ण इज इजी प्रोसेस ओनली बाय केवल भक्ति। इफ यू जो परम पक्ष 8.16 देखोगे, रीबर्थ इज ऑल प्लैनेट एक्सेप्ट कृष्ण अबोर्ड, भगवान अपना अबोर्ड का गुणगान कर रहे हैं, मेरा अबोर्ड इतना महान है, वो रीबर्थ नहीं होना है तो मेरे पास आ जाओ। भगवान इसलिए कह रहे हैं दुखालम, ये यहाँ पर कोई आएगा जन्म मृत्यु होगा तो आप मेरे पास आओ, भगवान आपको एनकरेज करें, इनविटेशन दे रहे, दैट इज नॉट एक्चुअली डिस्करेजमेंट स्टेटमेंट है, बट वी प्रेजेंट है वेरी ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, दिस इज अप टू अस। समटाइम्स पीपल आर प्रेजेंट द वर्ड्स इन वेरी पेसिमिस्टिक वे, दैट इज देयर रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, आज माय पॉइंट ऑफ व्यू। प्रभु जी मैं एक्चुअली ना खुद से रिलेट कर रही थी कि कुछ पास्ट आपका- फ्यू इयर्स में नहीं आपका नहीं, ये मैं भी सुना हूँ लेक्चर, मैक्सिमम डिवोटी उसको ऐसे डरा देते हैं लोगों को एक्चुअली श्लोक बोल के, आपका जीवन पूरा रद्द हो गया। ऐसे भगवान यहाँ पर कहाँ रद्द बोल रहे हैं बताओ, आप बता दो। आप मैं 3 श्लोक बोला, पूर्व के बोला, पूर्व पहले श्लोक बोला 8.14, फिर बाद में 16 बोला, भगवान कहाँ बोले कुछ ऐसे बात, भगवान एनकरेज दिया एक्चुअली, भगवान गिवन पेसिमिस्टिक, भगवान इज ऑप्टिमिस्टिक आइडिया, यू जस्ट कम आउट फ्रॉम देयर, डोंट ट्राई टू एक्चुअली मतलब सॉल्व द प्रॉब्लम। भगवान ने यहाँ पर कह रहे हैं 15 चैप्टर में, मेटल वर्ल्ड इज सो जाल है, डोंट ट्राई टू फिगर आउट, डोंट ट्राई टू फिगर आउट द यहाँ पर नेटवर्क कहाँ शुरू हुआ, ट्राई टू क्या नॉट फिगर आउट, कम आउट, मतलब डोंट ट्राई टू फिगर आउट दिस मेटल वर्ल्ड, ट्राई टू कम आउट। तो यानी आप एक्चुअली अपना जो बंधन उसको काटो, उस जड़ को काटने की कोशिश मत करो, जड़ को पता नहीं कर पाओगे कहाँ पर उसका एक्चुअली मतलब नेटवर्क है। तो यानी भगवान ये बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, तो आप अपना प्रॉब्लम को देखो और उसको ऊपर उठो, उनकी प्रॉब्लम को आप मेटल वाला प्रॉब्लम को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो भगवान यहीं पर कह रहे हैं दुखालम सातम, यह संसार दुख होता है, तो आप उसके लिए तैयार हो, यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू ओवरकम थ्रू दैट मेटल वर्ल्ड, दैट्स इट। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो Yes, Suchi Mataji. मच। You have any question? Now you just hand raise yourself. Yes, Hare Krishna Prabhuji, my question was that amongst the Chatur Shloki Bhagavatam, the third answer was that Krishna is within and without. I cannot understand how is this prayojan. प्रयोजन इसलिए कि भगवान एक्चुअली अपनी वर्ल्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी के माध्यम से ओके
ये स्पिरिचुअल एनर्जी माध्यम से भगवान अपनी लीला करते हैं। जैसे भगवान नंद बाबा का चप्पल को लेकर आ रहे हैं खुद ही अपने मत्था में, राइट? तो whenever he do any menial also which relates to devotee, वो भगवान क्या करते हैं, अपने खुद ही करते हैं। बट जब मेटल वर्ल्ड के आता है, he just engage his external energy, है ना? So that is the point. तो प्रयोजन means Right. Lord actually the Lord play मतलब इन जोगमाया माध्यम से, अपनी भक्त माध्यम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रह्म विमोचन लीला में भगवान खुद ही अपने हाथ से दही का भात लेके खुद ही दौड़े गोवाल को देखने के लिए, बछड़ा को देखने के लिए। ऐसे नहीं जो दुष्ट को लगा दिए। तो भगवान जहाँ डिवोटी के सकते हैं खुद ही करते हैं। हो सकता है छोटा सा मिनिया लोग कुछ, बट एक्सटर्नल एनर्जी आता है, he work with the external energy, मतलब मेटल वर्ल्ड कहता है he work with the external energy. Yes. Okay, thank you प्रभु जी, हरे कृष्ण। और उसका चर्चा हम डिटेल करेंगे when भागवतम जो चतुर्थ भागवतम होगा, we'll detail discuss करके take actually one day particularly for that. All four stories. Thank you प्रभु, thank you, हरे कृष्ण। Hare Krishna. Okay, sorry for overtime. We have planned to finish by 9. Sorry, what you आप लोगों की पेशेंस है, एंथुसियाज्म, तो आप सुन लेते। So thank you so much. So we'll see you next time, and the homework for you that how many questions are asked by Arjun in Bhagavad Gita. Yes, Sital Mataji, you find out from Google or you find out from Bhagavad Gita, is up to you. जी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, अब मैं से देखूंगी। थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. Thank you. Wonderful answer. हरे कृष्ण प्रभु जी के नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।